students, welcome to Law Prep Tutorials, and this is Vandana, your English mentor, and I'm back again with yet another series on the figure of speech, figure of speech series जो अभी हमारा चल रहा है, जिसमें I've already uploaded around 8 videos, and this is our part 9 on figure of speech, in which we'll be doing some more interesting figure of speech. चलिए तो शुरू करते हैं आज की figure of speech. अरे you must be wondering कि मैम figure of speech पढ़ा रही है, and what is this? चलो, this is the big news for you all. So students, we are coming up with GK marathon, and this is going to be a power packed session. GK marathon for 6 non-stop hours. Yes, this is going to be a power packed session of 6 hours. Would be taken by your best and your favorite teachers, your favorite mentors. अब इसमें क्या खासियत होगी, पहले तो बता दूं कब है ये. This is going to happen on 31st of August. 31st of August, 5 to 11 PM. 5 बजे से लेके 11 बजे तक नॉन स्टॉप बैठोगे तो सही आप, लेकिन ये नॉन स्टॉप बैठना आपका खाली नहीं जाएगा, बिकॉज समथिंग बिग इज कमिंग अप, and that you will get to know during these hours only. All right, number one. And secondly, ये जो 5-6 घंटे आप यहाँ पे बैठोगे ना, इन 6 घंटे में the most important thing is we'll be covering up 50 most important topics, and all your backlog, all your GK doubts, and everything would be cleared in this GK marathon. So don't miss this session. This is going to be a really impactful session. See you in this session. अब आ जाते हैं अपने parts of speech पे. Fine, चलो. So this is figure of speech part 9. Part 9 में हम करने वाले हैं interrogation, climax and anti-climax. तीनों parts of speech, तीनों जो ये figure of speech है, काफी इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है, एंड मोस्टली कई बार आपने इनको इन ऑप्शंस में इधर उधर कहीं ना कहीं देखा ही होगा. सबसे पहले बात करते हैं इंटरोगेशन से. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरोगेशन? यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम इंटरोगेशन का मतलब तो हमें पता है ना, इंटरोगेशन का मतलब तो होता है पूछताछ करना, राइट? अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, फॉर एग्जाम्पल इफ द पुलिस हैज टेकन द अक्यूज्ड फॉर इंटरोगेशन, ओके, मतलब अक्यूज नहीं, द पुलिस हैज टेकन द सस्पेक्ट फॉर इंटरोगेशन, तो मतलब पुलिस ने जिसके ऊपर शक है उसको इंटरोगेशन के लिए लेके गई है. सो इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ के लिए. फाइन. सो इंटरोगेशन में क्या होता है, अगर आपसे कोई इंटरोगेट करता है, इंटरोगेट का मतलब होता है कोई क्वेश्चन पूछना. अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो बदले में व्हाट डू आई एक्सपेक्ट? आई एक्सपेक्ट एन आंसर. इफ आई आस्क्ड यू व्हाट इज योर नेम, बदले में आई डू एक्सपेक्ट एन आंसर. इफ आई आस्क्ड यू व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, I do expect that you would say, ma'am, English is our favorite subject. If I ask you who is your favorite teacher, I do expect you to say that, ma'am, Vandana ma'am is our favorite teacher. Isn't that? No, I'm just kidding. Okay, anyone else could be a favorite teacher. By the way, interrogation का मतलब होता है कोई सवाल पूछना, बदले में जवाब देना. बट जब हम इसको एज अ पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं, तब जो सवाल पूछा जाता है ना, उसका पर्पस ये नहीं होता है कि आपको उसके बदले में एक आंसर मिले. यहाँ पे उसका जो पर्पस है वो बदल जाता है. यहाँ पे उसका पर्पस ये नहीं होता है that in return we are getting an answer, but here a question is asked to put your point more effectively. That is what is interrogation. ठीक है? Let's see the definition of interrogation. Interrogation is a figure of speech where the writer or speaker asks a question not to receive an actual answer. This is important. Whoever is the speaker, he is asking a question. Question तो हम पूछ रहे हैं, but हम इस purpose से नहीं पूछ रहे हैं कि हमें उसके बदले में एक आंसर मिले. Okay, so the writer asks a question not with the intention of receiving an actual answer, but to make a point more effectively or provoke thought. So the most important thing is, if I am asking a question, it is not to get an answer, बट यहाँ पे मैं अपना पॉइंट बहुत ज्यादा इफेक्टिवली रख रही हूँ, इसीलिए वो सवाल पूछा जा रहा है. इसका सबसे सिंपल एग्जांपल बताती हूँ. कभी फेल हुए हो? याद करो, कभी फेल हुए या ऐसे मार्क्स आए हो जो मतलब लिटरली शर्मनाक मार्क्स हो. कभी ऐसा हुआ है? अगर कभी कोई भी सिचुएशन ऐसी है जब आप फेल हुए हो, ठीक है, बाई चांस अगर नहीं भी हो तो इमेजिन करो दैट यू फेल्ड इन सम सब्जेक्ट एंड यू आर शोइंग दैट पेपर टू योर मॉम और डैड, एंड डैड आपको बोल रहे हैं आर यू अशेम्ड ऑफ योर फेलियर और आरंट यू अशेम्ड ऑफ योर फेलियर? क्या करोगे बेटा उस टाइम पे? जब पापा ने पूछा आरंट यू अशेम्ड ऑफ योर फेलियर या आर यू अशेम्ड ऑफ योर फेलियर, व्हेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड विद अ क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ऐसी जब सिचुएशन होगी तो आप क्या बोलोगे? यस, नो, नहीं. उस टाइम पे चुप रहने में ही भलाई है ना? चुप रहने में भलाई क्यों है? क्योंकि वो जो सवाल आपको बोला गया है ना कि आर यू अशेम्ड ऑफ योर फेलियर और आरंट यू अशेम्ड ऑफ योर फेलियर, वो सवाल आपसे जवाब देने के लिए, जवाब मांगने के लिए, जवाब टू गेट एन आंसर, इसलिए वो सवाल नहीं पूछा गया है. वो सवाल बेसिकली इस चीज के लिए बोला गया है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम फेल हो गए हो. That's what is the purpose of rhetorical questions. Yes, हम इसको
इंटरोगेशन को जब ये एज अ पोइटिक डिवाइस यूज होता है, हम इसको रेटोरिक क्वेश्चंस भी बोलते हैं, वेयर द पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज नॉट टू रिसीव एन आंसर बट द पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू पुट योर पॉइंट मोर इफेक्टिवली. ओके, फॉर एग्जांपल आई जस्ट सेड, आरंट यू अशेम्ड ऑफ योर फेलियर? सो हियर वी डोंट एक्सपेक्ट एन आंसर, वी एक्सपेक्ट the reason why I've said this is to put my point more effectively. Let's see some more examples to make this very clear, crisp and clear. How many times must we witness injustice before we act? अब जब अगर कोई ये चीज बोल रहा है कहीं पे बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है, अब वहां कुछ लोग इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट वी विटनेस इनजस्टिस बिफोर वी एक्ट? बेटा जब भी अगर कोई ऐसा सवाल होता है ना जहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स से आगे कुछ भी बोला जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू रीड द पैसेज बिफोर आंसरिंग, तो इसका आंसर होगा 1 और 2. सो हाउ मेनी टाइम्स से जब भी हमें क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसके आंसर में वी एक्सपेक्ट अ नंबर, राइट? बट ये जो क्वेश्चन है जिस तरह से पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट वी विटनेस इनजस्टिस बिफोर वी एक्ट, डू यू एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कोई आंसर बोलना चाहिए? नहीं. ये क्वेश्चन इसलिए बोला जा रहा है कि प्रोबेबली हमने बहुत इनजस्टिस सह लिया और नाउ इट इज टाइम टू गेट अप एंड एक्ट. That is what the point of the author is, that he wants to put out more effectively. So that is how we use interrogation as poetic device or figure of speech. जहाँ पे क्वेश्चन तो हम पूछ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन जवाब पाना नहीं है. क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन है अपने पॉइंट को और इफेक्टिवली रखना और इम्पैक्टफुली रखना और एक पावर पैक्ड तरीके से रखना. Okay, let's see the second example. Can anyone deny the suffering of the poor? Okay, so when I say, suppose if there is a someone is doing this thing, एक कुछ slums वाले एरिया में किसी को कोई सर्वे करना है, and there you actually go and see that they're suffering like hell. और वहां पे अगर ये कोई पूछा जाता है, can anyone deny the suffering of the poor? तो what does this mean? कि वहां जितने भी लोग बैठे हैं वहां पे yes या no बोलेंगे? नहीं, ये इस चीज के लिए बोला जा रहा है that poor is suffering badly. समझ आ रहा है कहां पे हम इंटरोगेशन यूज करते हैं? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. डू यू थिंक मनी ग्रोज ऑन ट्रीज? ये आई एम श्योर मम्मी पापा से कभी तो सुना होगा. अगर मैं भी किसी को ऐसा बोलूं, सपोज माय चिल्ड्रन आर आस्किंग मी मनी डेली एंड डेली, और मैं उसको बोलती हूँ क्या तुम्हें ऐसा लगता है ये पैसे पेट पे उगते हैं? दैट मीन्स व्हाट? इनडायरेक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस इज हार्ड एंड मनी, यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट इट लाइक दिस. गेटिंग इट? सो अ क्वेश्चन इज आस्क्ड not to get an answer but to put your point more effectively. That's what is interrogation, simple language में. Okay, how many times do I have to tell you the same thing? अगर यहाँ पे कोई जवाब दे दे 2 times more, okay, 10 बार और बता दो, तो सामने वाले की ना वहां पिटाई हो जाएगी. तो ये गुस्से में बोल रहा है, how many times do I have to tell you the same thing? गुस्से में बोल रहा है ना? That means कि I've already told you so many times. So यहाँ पे I don't expect an answer back. I don't really expect an answer. This means that I'm fed up of explaining this again and again. अब नहीं बता सकती. ये indirectly ये चीज बोल रहा है. Okay? Must I remind you again of your duty? क्या मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी दोबारा याद दिलाऊं? अब यहाँ पे do you expect an answer? Yes, you should, or no, you shouldn't. No, that means that you are supposed to do your duty. I'm not supposed to remind it to you. Getting it? See, कैसे interrogation को use करें बेटा, उसका usage देखो. Okay? How many times must I repeat myself? You don't expect an answer, ma'am. Once more, twice, 10 बार और कर दो. No, that means I've already explained it so many times. इंटरोगेशन समझ आया क्या होता है इंटरोगेशन? सो इंटरोगेशन, अच्छा सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज यू आर स्टडिंग, बहुत ही आप यू आर इनग्रॉस्ड इन योर स्टडीज, एंड आपका छोटा भाई या बहन आके आपको बोले कि मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो तो किचन से, तब आप क्या बोलोगे? एम आई योर सर्वेंट? बोलोगे ना. कितने लोग ये रिलेट कर पा रहे हैं, कितने बच्चे? अगर आपका कोई छोटा भाई बहन आपके आके कुछ काम बोलता है तो यू जनरली से ना, एम आई योर सर्वेंट? डू यू एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम हिम कि yes you are my servant or no you aren't my servant? No. ये आपने क्यों बोला am I your servant? That indirectly आप ये बोल रहे हैं I'm doing something important and how dare you intervene in between and ask me to get you a glass of water. So this is how interrogation is used as figure of speech, जहाँ पे question is asked, but the question is asked not with an intention of getting an answer, but the question is asked with an intention to put your point more effectively, more impactfully in a power packed method. That's called interrogation. ठीक है? I hope interrogation सबको समझ आ गया होगा. आगे चलते हैं क्लाइमैक्स पे. बेटा क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स अगर मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स की दूं, सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी 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 सिंपल. दिस इज क्लाइमैक्स एंड दिस इज एंटी क्लाइमैक्स. सिंपल. ये क्लाइमैक्स है, ये एंटी क्लाइमैक्स है. कैसे? कोई बता सकता है मुझे?
क्लाइमैक्स में जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसमें जितनी भी आइडियाज हैं या जितनी भी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लुक अप इन द स्काई, देयर इज अ बर्ड, एन एरोप्लेन एंड अ सुपरमैन। ठीक है, तो सबसे पहले बर्ड जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो सबसे पहले आ गई, फिर प्लेन उससे थोड़ा सा अनकॉमन, और फिर सुपरमैन जो सबसे रेयर है। ओके, सो लुक अप इन द स्काई, देयर इज अ बर्ड, अ प्लेन एंड अ सुपरमैन। सो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस हो गया। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस होता है क्लाइमेक्स, और इसका ऑपोजिट जहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस होता है वो हो जाएगा एंटी क्लाइमेक्स। ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज मोबाइल इन द एक्सीडेंट। सबसे पहले फैमिली, फिर कार, फिर मोबाइल। तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस होता है वहां पे आएगा आपका एंटी क्लाइमेक्स। ओके, ये क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स समझ आ गया। सो व्हाट इज क्लाइमेक्स? दिस इज अगेन अ rhetoric device. It's a figure of speech in which words, phrases, or even ideas are arranged in ascending order of importance. Ascending descending पता है ना, ascending यानी छोटे से बड़ा, descending यानी बड़े से छोटा। ओके, सो ascending में हम सबसे पहले सबसे छोटा रखेंगे, फिर ओके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में हम इसको यूज करेंगे। सो दैट इज योर क्लाइमेक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस और इंटेंसिटी लीडिंग अप टू द मोस्ट पावरफुल पॉइंट। मतलब जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होगी वो सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, सबसे ऊपर, यानी हम स्टार्ट करेंगे सबसे सिंपल से, सबसे लीस्ट कॉमन से, सबसे ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट से, गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा एंटी क्लाइमेक्स, जहां पे हम शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट से और नीचे आएंगे लीस्ट इंपॉर्टेंट पे। सो दैट्स क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स। जल्दी से इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि अच्छे से और समझ आ जाए। ओके, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। किसी को याद आ रहा है ये किसकी इंपॉर्टेंट फेमस लाइंस है? अगर याद आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, याद आया? इट इज सेड बाय whom? अगर याद आ गया तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वोंट टेल यू। ठीक है, सो आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, ये सबसे कम है, फिर आई सॉ, आई कॉन्कर्ड सबसे बड़ा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्कर्ड, तो हमने सबसे एंड में लिखा। ठीक है, टेल मी, टेल माई फ्रेंड्स, टेल द वर्ल्ड, सबसे छोटे से शुरू करा, मुझे बताओ, मेरे फ्रेंड्स को बताओ, पूरी दुनिया को बताओ। ओके, he fought for family, for country, for humanity. See how we are starting with the smallest element. सबसे पहले family, फिर country, फिर humanity. Okay, so that's climax. She whispered, she cried, she screamed. Whisper, cried and scream, छोटे से बड़ा। First we work, then we struggle, then we triumph. ठीक है, work, struggle, triumph, छोटे से बड़ा। He lost his fortune, his honor and his life. So fortune, honor, life. सबसे कम fortune, उसके बाद honor और सबसे बड़ा life. It was cold, it was bitter, it was unbearable. सबसे पहले cold, फिर उससे ज्यादा intensity बढ़ी तो bitter. सबसे ज्यादा जब intensity बढ़ जाएगी तो हो जाएगा unbearable. Okay? For justice, for freedom, for glory. So this is how climax works. Okay? सबसे छोटी चीज पहले, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो सबसे कम सिवियरिटी या इंटेंसिटी से बात करें, जिसकी इंटेंसिटी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। दैट इज हाउ वी डू क्लाइमेक्स। अब आ जाते हैं एंटी क्लाइमेक्स पे। एंटी क्लाइमेक्स में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। पहले एंटी क्लाइमेक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच आइडियाज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, फ्रॉम समथिंग सीरियस और लॉफ्टी टू समथिंग ट्रिवियल, यानी कुछ जो सीरियस चीज है उससे हम ट्रिवियल चीज पे आते हैं, यानी सीरियस से हम मामूली चीज पे आते हैं, ट्रिवियल, सिली और रिडिकुलस। ठीक है, सो स्टार्ट, वी डू द स्टार्टिंग विद समथिंग सीरियस, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड गोइंग डाउन टू समथिंग ट्रिवियल और सिली और अनइम्पॉर्टेंट। ओके ओके, सो इट ऑफन क्रिएट्स कॉमिक, आयरनिक और सटारिकल इफेक्ट। यूज क्यों करते हैं? जितने भी पोएटिक डिवाइस है इनका कहीं ना कहीं जो इनका यूसेज इट इज टू क्रिएट कॉमेडी, टू क्रिएट irony, to create satirical effect. We use it for that thing only. So opposite of climax is anti-climax. चलो आ जाते हैं बस के कुछ एग्जाम्पल्स पे। He lost his family, his fortune and his pair of socks. See, कैसे? Can you see?
कैसे इसमें ह्यूमर क्रिएट किया गया है, कैसे इसको आई वोंट से एग्जैक्टली ह्यूमर बट कैसे इसको सरकास्टिक बनाया गया है। सबसे पहले हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर दी है ना, ही लॉस्ट हिज फैमिली, फैमिली के बाद फॉर्च्यून एंड फाइनली यू नो कमिंग डाउन टू अ वेरी रिडिकुलस थिंग। कहाँ पे फैमिली की बात कर रहे हैं, फॉर्च्यून की बात कर रहे हैं एंड मूविंग डाउन टू समथिंग वेरी सिली। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एंटी क्लाइमेक्स। ओके, शी कॉन्कर्ड नेशंस, ब्रोक हार्ट एंड टोर हर ड्रेस। ओके, सो पहली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, नेशंस को कॉन्कर किया, देन शी ब्रोक हार्ट्स एंड देन शी टोर हर ड्रेस। इंपॉर्टेंट से नीचे नीचे आते जा रहे हैं। I have done my duty to my God, my country and my tummy. देखो कहाँ God, कहाँ country, कहाँ tummy. So I've done my duty to God, to my country and to my tummy as well. So the coming down is from important to something silly. That's anticlimax, right? He lost his wife, his child and his fortune. ठीक है? And his umbrella. See, कहाँ wife, कहाँ child, कहाँ fortune and finally going down to umbrella. ऐसा होगा बेटा anticlimax. In moments of crisis, we must defend our country, protect our families and clean our shoes. तीन चीजों की बात हो रही है। सबसे पहले सबसे अर्जेंसी वाली चीज, क्राइसिस में क्या करना चाहिए? We must defend our country. Going down to, we must protect our families. And then going out to something very silly and very stupid, we must clean our shoes. Okay? He was admired for his wisdom, respected for his courage and remembered for his mustache. Okay? तो देखो, आई होप सबको एंटी क्लाइमेक्स समझ आ गया हो। एंटी क्लाइमेक्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज से शुरू करते हैं एंड हम जब जैसे से हम नीचे आते हैं, इट कम्स टू समथिंग वेरी ट्रिवियल और वेरी सिली और वेरी स्टूपिड, दैट्स एक्चुअली एंटी क्लाइमेक्स। ओके, सो ऊपर जाना क्लाइमेक्स, नीचे जाना एंटी क्लाइमेक्स। आई होप सबको समझ आ गया हो, आ गया है। सो आई थिंक दैट्स इट। यस, so in this video we have completed the three things: interrogation, climax and anticlimax. interrogation जब सवाल पूछा जाता है, लेकिन इसलिए नहीं कि हमको जवाब मिले, इसलिए ताकि हम अपना पॉइंट बहुत इफेक्टिवली बोल सकें। नेक्स्ट इज क्लाइमेक्स, जिसमें हम सीरीज ऑफ आइडियाज या वर्ड्स को ऐसे अरेंज करते हैं एज इफ दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। इसके एक्जैक्टली ऑपोजिट होता है एंटी क्लाइमेक्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 9 ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। जल्दी से पार्ट 10 में मिलते हैं विद सम मोर एक्साइटिंग and interesting figure of speech. Till then, bye bye. See you.